सिमिलर चीज बेच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव करते हैं, राइट? मेरे यहाँ पे 3 खिलौने की दुकान है बाजू बाजू में, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो 4 ब्लॉक अलग है। माय वाइफ आस्क्ड मी, ये कैसे होता है इन लोग को, तीनों बाजू बाजू में है, चिपक चिपक के है, वो भी ऐसा भी नहीं कि उसके बीच में 2 दुकान है, एंड स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस, दे आर सेलिंग द सिमिलर स्टफ व्हिच इज टॉयज, राइट? तो आपको बेचना आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज धंधा करना है तो रैपो बनाना सीखो, बराबर है, ताकि वो रेफरेंस बिजनेस लाके भी देवे, आपको खुश होना चाहिए, राइट? बनिया मेंटालिटी है, धंधो कर तो आवड़े જોઈએ આપણને, सिंपल सिंपल, ठीक है? लर्न फ्रॉम योर कंज्यूमर्स, एंगेज विद देम। तो ये कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट, ये सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट योर कस्टमर्स आर डूइंग। हम एक बार बेचते हैं फिर भूल जाते हैं उसको, फिर जब हमको पता चलता है कि भैया हाँ अब मैट्रिक्स के लाले पड़ गए हैं, फिर हम ढूंढना चालू करते हैं, फिर हम उससे बात करते हैं। तो ये सब it's evolving, so you'll have to keep a sharp eye on as a CEO of a company, right? As a business head of a company, वो एक डिफरेंस है फाउंडर का और डिफरेंट CEO के बीच में, ये वही डिफरेंस है। As founder is an innovator, a CEO is an executor, right? So you need to move from that hat to other hat to make sure that you keep moving and building multiple spaces, and then execution has to be given to someone else, simple, and learn from that. That's how you can scale. Just one point. How many of you want to double your income? So what do you need to do for that? Equal the knowledge or maybe profit. Knowledge. If you're working 8 hours or 16 hours. Huh? Sales, only sales. Yeah, please. Yeah. Robin Sharma is my friend on internet. We are connecting through net many times. He has given the answer of your question. If you want to double your income, invest triple in yourself. Absolutely. Right. Thank you, sir. So one of the investments that you need to do is, so there is this amazing book called How I Raised Myself from Failure to Success in Selling by Frank Bettger. It's written in 1940s or 50s. And he was a life insurance agent. And trust me, if you want to learn sales, spend 1 month as a life insurance agent. Then you will know how easy it is to sell your product, whatever you have created. So Frank Bettger says, if you want to double your income, double your enthusiasm. That's it. और घर के बाहर निकलो, इधर बैठने का कोई फायदा नहीं। आप कोडर भी हो फिर भी बाहर निकलो ताकि आपको पता चलेगा। Absolutely. So passion, and whatever data might say about your industry, if you believe in your product, you have to do your best for it. Then whatever result comes. Does not come. That's not in your control. Right? So have passion and sales. Every day you have to do sales activity. And every industry is a service industry because everybody has to serve customers. Right? So this bifurcation is not entirely logical, but it's okay. So that's what it is. Activity रोज करना है, रोज लोगों से बात करना है. Can you educate 5 new people every day about your product without expecting a sale? This is for everyone. Can you educate 5 new people about your product without expecting a sale? That itself will improve your network, your relationships, and that itself will tell you how things are moving ahead. Right? That was quite an answer, quite a useful one actually. And I think आप सभी को इन्होंने जो भी pointers दिए हैं, जो भी suggestions दिए हैं, probably this should be now onwards taken care of by all of our startups, so that आज हम जिधर हैं, probably कल हम उससे भी 3x, 4x or whatever you choose for, वहाँ तक आप पहुँच सको. So with this, all the best. Now we move further for, yes sir.
आज का जो पिच डे रखा था, फिर टाउन हॉल रखा था, फिर पैनल डिस्कशन रखा था, इसका पर्पस 3 चीजों के लिए था। ग्रोथ ट्री सर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्वेस्टमेंट राउंड्स की हुई है। ग्रोथ ट्री का फर्स्ट सेकंड राउंड का रिजल्ट इस वीक के एंड में आ जाएगा। पैरेलली मैंने आपको प्रॉमिस किया था सबको कि भाई एवरी मंथ देयर विल बी अ वन इन्वेस्टमेंट राउंड, यानी हम कनेक्टिविटी करवाते रहेंगे। जो भी अच्छे लोग हैं इकोसिस्टम में वो आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। जिसके साथ आपकी जम गई वहां पे आप बैठ जाओ, वहां रुक जाओ। भावेश जी स्टार्टअप इकोसिस्टम के, वडोदरा स्टार्टअप इकोसिस्टम के सबसे पुराने हमारे मित्र रहे। हम जब सायाजी स्टार्टअप समिट करते थे वडोदरा में 70s 2017 2018, भावेश जी स्पेशली मुंबई से उनका डेलीगेशन लेके फॉर 10 days used to be here. Why? To support the startups, to mentor the startups and the potential startups उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आज का भी पर्पस यही था पिच डे के थ्रू कि उन्होंने सिंडिकेट वेंचर शुरू किया है। तो मिलेनियम डिवास फंड एक वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कनेक्टिविटी होना, ही इज ऑन द मेंटर बोर्ड, लेकिन शायद कितने लोगों ने पर्सनली कनेक्ट किया होगा उनसे। सो पहली बार ये चांस था जहां वो पर्सनली आज वीएसएस पे आए। पहली बार वो वीएसएस पे आए। बाय द वे डे 1 वीएसएस के डे 1 था, तब से ही ऑन द मेंटर बोर्ड। उन्होंने की कमिटमेंट किया कि निखिल भाई आपने शुरू किया है, अच्छा ही होगा और मैं मेरा पूरा टाइम कमिट करता हूँ आपको, जब भी जरूरत होगी आई विल बी देयर। और पहली बार आज वो स्टार्टअप से मिलने के लिए आए हैं कि स्टार्टअप्स कैसे है, क्या हेल्प चाहिए, क्या हेल्प मैं पर्सनल लेवल पे कर सकता हूँ, क्या हेल्प मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। पूरा दिन मैं यहाँ नहीं था, सेकंड हाफ में आया हूँ। सॉरी फॉर लेट लतीफी के लिए। और हरिहरन जी है तो मुझसे सीखना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें शायद अभी भी सीखनी बाकी है। हम बुलाते रहेंगे उनको। अब आहा वेंचर आने वाला है, उसके बाद और वेंचर आने वाला है। ये साहब भी एक वेंचर फंड लेके आ रहे हैं, इसीलिए साहब को भी बुला लिया मैंने। देखो पैसा कहीं से भी मिल जाएगा। द इश्यू इज दैट कब लेना, कैसे लेना और ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना। तो वो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत थी। दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंटर्स। द सेकंड थिंग, जो चीजें समझे नहीं है कि भाई सेल्स का फनल ग्रो कैसे करना है, वी डोंट नो। सब कुछ एक साथ में एक्टिविटी बेस पे कैसे करें, वी डोंट नो। तो उसके लिए सर, हरिहरन सर, भाग्येश सर, भावेश सर पर्सनली भी वीएसएस पे फिर से आके कम से कम 4-5 दिन तो हम कमिट करेंगे उनसे। 4-5 दिन यहाँ पे रुक के यहाँ पे पूरे एक बुट कैंप अरेंज करने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ सुबह से शाम तक हम बैठ के जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको समझाई जाएगी। फिर उसका एक फील्ड वर्क करेंगे, एक्टिविटी कि भाई चलो हम करते हैं। आपको नहीं समझ में आता कैसे होता है, चलो एक्टिविटी करते हैं, फील्ड एक्टिविटी करते हैं। तो फील्ड एक्टिविटी करेंगे, फिर समझेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर एक्टिविटी करेंगे, ताकि वो तो हर एक फॉर्मेट पे वी आर वर्किंग अपॉन। सो बहुत जल्दी मैं सर से रिक्वेस्ट किया हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हमारे सारे स्टार्टअप्स के ओर से कि क्या हम बुट कैंप के फॉर्म में या एक क्रैश कोर्स की तरह कहीं ना कहीं जो सारी चीजें, वो सारे एक लेवल पे नहीं है। किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने फाइनेंस किया है, किसी ने कुछ और किया है, किसी ने कुछ और किया, तो सारे एक फीस पे आ जाए। उसके लिए क्या हो सकता है? तो दैट्स व्हाई वी आर कमिंग अप विद समथिंग। सो उसको भी अनाउंस करेंगे। एंड वाइब्रेंट गुजरात में हम कैमओ भी साइन करने जा रहे हैं। सो अभी से मैंने बता दिया कि हम वाइब्रेंट गुजरात में एमओ साइन कर रहे हैं। तो उस एमओ के बाद ये प्रोसेस और बढ़ जाएगी। ओके, तो गुड न्यूज। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भाई,
सर हमने लास्ट वीक हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका डेटा सीएम ऑफिस में रेगुलरली अपडेट करते हैं, सीएम ऑफिस में, क्योंकि कौन से स्टार्टअप्स को क्या मेंटरिंग दिया, पीरियडिक अपडेट होता है। तो उनका स्टार्टअप लास्ट वीक हमारे VSS के कोर्ट से सिलेक्ट हुआ था। He was invited by the Chief Minister of Gujarat and they presented the idea और उन्होंने एक मशीन गिफ्ट भी किया है सीएम ऑफिस को। टुडे मॉर्निंग जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वो भी शेयर कर रहा हूँ सबके साथ कि आज सुबह ही एक कॉल आया है और मिनिस्टर साहब पर्सनली VSS पे आके या वडोदरा के किसी सर्किट हाउस में किसी अच्छी जगह पे हम बैठ के वो सिलेक्टेड स्टार्टअप से बैठना चाहते, बातें सुनना चाहते, प्रोडक्ट्स क्या बना रहे हैं, उनके क्या इश्यूज है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है, तो चाय पे चर्चा होती रहेगी। सो बहुत सिनेरियो अच्छा जा रहा है। पहले शायद ये नहीं हो रहा था, लकीली ये अभी हो रहा है। अगेन पैसों के पीछे मत भागना अब, क्योंकि अब है ना बहुत सारा फंड अब इजीली आ रहा है। पहले हमें भागना पड़ रहा था, थिंक बिजनेस भाई से मेरा बात हुआ था लास्ट टाइम की फंडिंग के लिए भागना पड़ रहा था। नाउ पीपल आर अप्रोचिंग टू अस कि भाई सर आप अच्छे स्टार्टअप्स दिखा दीजिए, आप जस्ट कनेक्ट कर दीजिए, विल फिगर आउट द वे। तो हम थोड़ा वेट और होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी वैल्यू समझ में आए। वो जब ईगरनेस बढ़ जाएगा तब कनेक्टिविटी का इजीली एक पहलू रहेगा। स्पेशली आज की इस मीटिंग के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप शायद आज पिच करके चले गए, शायद 4-5 स्टार्टअप चले गए शायद। लेकिन सुबह से अर्ली मॉर्निंग में सर 6 बजे यहाँ पहुंच चुके हैं, सुबह मॉर्निंग 6 o'clock वो VSS पहुंच चुके हैं जस्ट टू इंटरेक्ट विथ अस। आज शाम को वापस मुंबई जा रहे हैं, पूरा दिन VSS को दिया है। तो आप आई थिंक एक हर बार एक चीज डिस्कस करते हैं, हर बार कॉमन डिस्कशन होता है कि सिर्फ पैसा देने से काम नहीं होगा, सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं होगा। जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ये स्टोरी पूरे गांव को पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि प्रीतेश भाई ये कर रहे हैं, मौलिक भाई ये कर रहे हैं, भाई योगेश ये कर रहा है, तो ये करने की ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब तक लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे नहीं तब तक लोग आपको आइडियलाइज करेंगे नहीं। इसी विजन के साथ वुमन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज को नेशनली और इंटरनेशनली घर घर तक पहुंचाने के लिए लास्ट ईयर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेट करके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मिलेनियम डिवास उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी। हरिहरन जी ने और भावेश जी ने ये बुक लिखी है और कंट्री के बहुत इंस्पायरिंग वुमेन्स जो एंटरप्रेन्योर्स है, आज उनमें से एक हमारे साथ बैठे। जिनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बुला के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज किया गया था और इस बुक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया गया था। और आज गुजरात का पहला लॉन्च VSS पे हो रहा है। इस बुक को भी पढ़ा जाए, ये जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स की जो जर्नी है उसको कहीं ना कहीं स्टडी किया जाए। और इस स्पेशल बुक लॉन्च को और स्पेशल बनाने के लिए आज 2 स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे पुराने सपोर्टर इकोसिस्टम के पायनियर मेंबर्स में से एक श्री चिंतन पोपट सर, CS चिंतन पोपट। तो को-वेंचर हब करके उनका को-वर्किंग भी है। ही इज अ पायनियर एंड सूनर ही इज गोइंग टू स्टार्ट द वेंचर फंड, एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म इन बड़ौदा। बहुत जल्दी ये अनाउंसमेंट होगा। मिस्टर रोहित दवे, श्री रोहित दवे, रोहित सर JCI हो या अलग अलग लाइन्स हो, हर एक अलग अलग फर्म पे he is that. He was a manager, former manager at GSFC Limited. और उसके बाद उन्होंने पूरा रिटायर्ड लाइफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया है। तो आज भी वो हमारे साथ है। तो हम दोनों गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप डायस पे आए।
Sharmila, please join me. Really nice lesson for all of us. Vicky bhai, please आइए. Sir. Sir. I think we have perfect. Something now that I am speaking from woman and actually remote on the woman can get on the speaker. I think this is a dream project that me and Hari saw 2 years ago. Actually, we are fortunate that pandemic happened for us at least, because this book was supposed to be launched in the month of April 2020. Though it's a very unfortunate scenario for the world that pandemic happened. But I think this actually gave us a lot of opportunity to reach out to a lot of women entrepreneurs. And 5th August 2021, we did an event in Bombay Stock Exchange, and we had invited 75 women entrepreneurs whom we awarded also, and this book was launched. And sooner you will see more volumes coming in. So as we speak, this is the first volume. We have 25 inspiring women entrepreneurs. Sharmila is one of those inspiring lady women entrepreneurs whom we have covered, and it has a foreword from none other than Ms. Anju Verma. Anju Sharma ji, sorry. I keep always. Yeah. Some very special people have written for Yes. this. Dr. Kiran Bedi. So Dr. Kiran Bedi has written a word for this book. We have Dr. For example, we have Shweta Shalini ji, who is also a chief evangelist with us. Then we have Ashish Chauhan sir, who is the MD and CEO of Bombay Stock Exchange. He has written a article about women entrepreneurship. Mr. Kushru Balsara ji, who is the head for BSc IPF, that's Investor Protection Fund, who has given his inputs and well wishes to us also. But I think thanks to Ms. Anju Sharma ji, who is the Principal Secretary IAS. Yes. I think she was very encouraging when we spoke to her about this book, and she said, I think it's a brilliant initiative. So I think this is something that is there. Request everyone to go through it. Take a copy, buy it for yourself, buy it for your women entrepreneur friends. And I think if you have more women entrepreneurs whom you know, please do recommend us, because volume 2 is going on. Volume 3 is already ready. So we wish to make sure that women entrepreneurs are recognized and supported by all of us. That's the vision behind this title called Eves Against the Odds. A big round of applause for Thank you so much. And